Good morning, students. Welcome back. How are you? I hope you all are happy. स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में वीडियोस देख रहे हैं और पेरेंट्स आप भी अपने प्यारे से बच्चे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं. इट इज़ रियली अप्रिशिएबल. In the last session, I explained you about nouns. Let us review it once again. The names of persons, animals, things or places are called nouns. For example, boy, girl, chair, table. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी. क्या आपने उसे सोल्व किया है? ओके, नाउ चेक योर आंसर्स. FAIRY fairy, FAIRIES fairies, HALF half, HALVES halves, PHOTO photo, PHOTOS photos, CHIEF chief, CHIEFS chiefs, ROOF roof, ROOFS roofs. Students, today we are going to start our next chapter of reader book. The name of the chapter is Sandy Learns a Lesson. Children, tell me, do your parents give you pocket money? क्या आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं? Yes. What do you do with your pocket money? आप अपनी पॉकेट मनी से क्या करते हैं? अपनी पसंद की चीज़ लेते हो. कुछ बच्चे जो हैं अपनी पॉकेट मनी को सेव भी करते हैं. This story is about a boy whose name was Sandy. His parents gave him a fixed amount of ₹50 for eating sandwiches and ice cream. But Sandy was always asking for more. Then his parents made a plan to teach him the value of money. Sandy के पेरेंट्स ने क्या प्लान बनाया? क्या सैंडी ने पैसों की वैल्यू को समझा? इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें लेसन को पढ़ना होगा. Before starting the chapter, let us learn some new words. Allowance, ALLOWANCE, an amount of money paid regularly to a person to meet expenses. वो मनी जो किसी पर्सन को उसके खर्च के लिए दी जाती है. Extravagant, EXTRAVAGANT, spending much more than is necessary. It means फिजूल खर्च करना. Chores, CHORES, a routine task, जो हमारे डेली के काम होते हैं. Meager, MEAGER, insufficient, means बहुत कम. Nutritious, NUTRITIOUS, nutritious means healthy, पौष्टिक. Relishing, RELISHING, liking the taste of something, means स्वाद लेना. Urged, URGED, force someone to do something, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करना. Miser, MISER, a person who spends as little money as possible, means कंजूस व्यक्ति. Judiciously, JUDICIOUSLY, with good judgment, सोच समझकर डिसीजन लेना. Students, write down the new words in your notebook and learn them. Let us start the lesson. Sandy looked up with a worried frown. He searched his pocket, pulled out a few coins and pushed them back. Sandy जो है बहुत चिंता में लग रहा है. he searched his pocket, वो अपनी पॉकेट में सर्च करता है. pulled out a few coins, coins होते सिक्के, और उसमें से कुछ coins निकालता है. and pushed them back, और उसको वापस से डाल देता है अपनी पॉकेट में. Within 2 weeks he had finished, finish होता है खत्म करना. His pocket money yet again, उसने 2 weeks में ही अपनी पॉकेट मनी को दोबारा से खत्म कर दिया है. His father warning filled his ears. This time you will not get additional money. Additional means extra. अब उसके कानों में अपने उसके पापा की बात गूंज रही है कि इस बार तुम्हें एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगी. Sandy was never happy with his monthly allowance. Sandy जो है अपनी पॉकेट मनी से कभी खुश नहीं होता था.
His parents took care of all his needs. Needs होते हैं आवश्यकता, हमारी ज़रूरतें. उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे and gave him a fixed amount of ₹50 for eating out, sandwiches, ice cream and soda at the school canteen. और उसको वो जो है पर मंथ ₹50 देते थे स्कूल कैंटीन से सैंडविच, आइसक्रीम और सोडा खाने पीने के लिए. बट सैंडी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर. बस सैंडी को और पैसे चाहिए होते थे. You don't give me enough money to spend. The meager amount you gave me got over in just 17 days. And believe me, Dad, I did not spend much, complained Sandy to his father. सैंडी अपने फादर को कंप्लेन करता है कि आप मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देते हो. जो आप मुझे पैसे देते हो वो 17 डेज में ही ख़त्म हो जाते हैं और मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता हूँ. But son, why do you eat out every day? Try relishing the nutritious lunch your mother packs for you. Sandy's father. सैंडी के फादर उसको बोलते हैं कि तुम बाहर डेली क्यों खाते हो? तुम्हारी मम्मी कितना हेल्दी खाना बनाती है, तुम उसको खाया करो. Don't be a miser, Dad. A burger costs just ₹10. सैंडी अपने फादर को बोलते हैं, पापा आप कंजूस मत बनिए, एक बर्गर सिर्फ ₹10 का आता है. And what about that soft drink? Another ₹10. Your pocket money is over by the 15th of every month. सैंडी के फादर बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक जो है वो ₹10 का आता है और जो तुम्हारी पॉकेट मनी इस तरह से 15 तारीख तक खत्म हो जाती है. सैंडी लेफ्ट द रूम विद अ सैड फेस. सैंडी सैड हो जाता है और वो रूम से चला जाता है. सैंडीज फादर वाज सरप्राइज्ड एट हिज सन्स बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स व्यवहार. सैंडी के फादर उसके अपने बेटे के व्यवहार पे बहुत जो है सरप्राइज होते हैं, हैरान हो जाते हैं. ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, सुधा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग टू सैंडी? वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, सुधा क्या मैंने सैंडी को कुछ गलत बोला है? व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दैट? उसने ऐसे क्यों बिहेव किया? सी हिज पॉकेट मनी इज एनफ. It is just that he is being careless and extravagant. He needs to understand the value of money, replied his wife. Replied means answered. उनकी वाइफ आंसर देती है, उसको हम पूरी पॉकेट मनी देते हैं पर वो बहुत केयरलेस है और बहुत खर्चीला है. उसको जो है पैसे की वैल्यू का पता होना चाहिए. So Sandy's mother and father made a plan for him. अब सैंडी के मदर और फादर उसके लिए एक प्लान बनाते हैं. According to the plan, Sandy was supposed to work for the extra money he demanded every month. उस प्लान के अकॉर्डिंग सैंडी को एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए कुछ काम करने होंगे. सुधा explained, you will have to help out in daily chores in order to gain points, and for every 10 points you will get ₹50 besides your pocket money and you can do anything with your earnings. सुधा जो है एक्सप्लेन करती हैं कि तुम जो है डेली के काम करते हुए जो है कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो और हर 10 पॉइंट्स के ऊपर तुम्हें ₹50 मिलेंगे जो तुम्हारी पॉकेट मनी से अलग होंगे. एंड यू कैन डू एनीथिंग विद योर अर्निंग्स. और तुम अपनी कमाई से कुछ भी कर सकते हो. Excited with the idea, Sandy quickly exclaimed, "This sounds good. I don't mind, Mom. Tell me more." इस आइडिया को सुनकर सैंडी बहुत एक्साइटेड हो जाता है. वो कहता है, मम्मी ये आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इसके बारे में और बताइए. On weekends you wash the car both inside and out and get 10 points which means ₹50 straight away, said his father. उसके फादर बोलते हैं वीकेंड्स पे तुम कार को वॉश किया करो अंदर बाहर दोनों से, तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे. इसका मीनिंग तुम्हें ₹50 मिलेंगे. Sandy started calculating a soft drink, burger and french fries. I don't mind at all. Sandy कैलकुलेट करना शुरू करता है. सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है मैं ये काम कर लेता हूँ. For watering the plants or helping out at home, you will get 2 points each. प्लांट्स में पानी देने का और घर में के कामों में हेल्प कराने के तुम्हें 2 पॉइंट्स ईच मिलेंगे. एंड वंस यू रीच द टोटल ऑफ 10 पॉइंट्स यू विल गेट ₹50 अगेन. जब तुम्हारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे तो तुम्हें अगेन ₹50 मिलेंगे. इन शॉर्ट, फॉर द रेस्ट ऑफ दिस मंथ यू विल हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ. तुम्हें जो है अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए खुद
अर्न करना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा। डू यू थिंक यू कैन डू इट? आस्क हिज मॉम। उसकी मॉम पूछती हैं क्या तुम ये कर सकते हो? ग्रेट आइडिया मॉम। When do we set the ball rolling? वो कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया है मॉम, हमने ये काम कब से स्टार्ट करना है? You can start working from tomorrow since it is Sunday, said Sandy's father. सैंडी के फादर कहते हैं कि तुम जो है संडे से ये काम शुरू कर सकते हो। Sunday morning, Sandy was up and about 1 hour of cleaning earned him ₹50. Not bad at all. संडे मॉर्निंग सैंडी उठता है और 1 hour तक वो क्लीनिंग का वर्क करता है और उसको ₹50 मिल जाते हैं। बट ही वॉज टायर्ड, वो थक जाता है। ही स्लेप्ट आफ्टर लंच, लंच के बाद वो सो जाता है। एंड वोक अप टू फिनिश हिज होमवर्क जस्ट इन टाइम, फिर वो उठकर अपना होमवर्क करता है। द वीकेंड पास क्विकली, वीकेंड जल्दी जल्दी पास हो जाता है। मंडे मॉर्निंग ही वॉक अप टू वाटर द प्लांट्स, गॉट ड्रेस्ड एंड रश टू स्कूल। मंडे मॉर्निंग वो उठता है, प्लांट्स में पानी डालता है, तैयार होता है और स्कूल चला जाता है। During lunch time he had a burger and a soft drink. लंच टाइम में वो बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक लेता है। He was left with only ₹25. अब उसके पास सिर्फ ₹25 बचे हैं। For the rest of the week he could only buy little things to cheer himself every day and settle down with mummy's tiffin. अब वो जो है कुछ ही चीजें खरीद कर खा सकता है और मैक्सिमम उसको अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ टिफिन ही खाना पड़ेगा। It was difficult but he had to prove himself. ये उसके लिए मुश्किल था पर उसने अपने आप को प्रूव करना था। By Friday he could just manage 15 points, winning ₹75. फ्राइडे तक उसने सब 15 पॉइंट्स गेन किए, उसको जो है ₹75 मिल गए। सैटरडे मॉर्निंग ही ग्रोन्ड व्हेन ही सॉ द कार इट रिक्वायर्ड वॉशिंग। सैटरडे मॉर्निंग को जो है वो देखता है कि कार को जो है वॉशिंग की जरूरत है। How could dad do this to me? He mumbled to himself. I have my homework and project work too. Mumble होता है बड़बड़ाना, वो अपने आप ही बड़बड़ा रहा है कि पापा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे होमवर्क भी करना है, मुझे प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट करना है। He worked hard all through the weekend. वो सब सारा वीकेंड जो है बहुत मेहनत करता है। संडे इवनिंग सैंडी वॉज अ रिच बॉय विद ₹175 in his pocket. संडे इवनिंग तक सैंडी के पास ₹175 जो हैं कलेक्ट हो जाते हैं। सैंडी, व्हाट विल यू डू विद दिस मनी? Why don't you take us out for a movie? With ₹175, you can take us to Radha Theatre. It is quite economical. Ask his mother. सैंडी को उसकी मदर बोलती हैं, सैंडी तुम इतने पैसे का क्या करोगे? तुम हमें मूवी के लिए क्यों नहीं लेकर जाते हो? हम जो है राधा थिएटर चलेंगे क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल है। At this, Sandy exclaimed, Mom, this is my hard-earned money. I can't spend it like that. अब सैंडी बोलता है, मम्मी ये मैंने बड़ी मुश्किल से मेरा पैसा कमाया हुआ है, मैं इसको ऐसे खर्च नहीं कर सकता। I promise I will take you in the coming month when I will have more money. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट मंथ लेकर जाऊंगा जब मेरे पास और पैसे हो जाएंगे। But that night Sandy could not help thinking, yes, he had learned the value of money because he has realized that it was hard to earn. उस रात जो है सैंडी सोचता रहा क्योंकि अब उसने जो है पैसे की इम्पोर्टेंस को समझ लिया था, उसने रियलाइज कर लिया था कि पैसे कमाने बहुत मुश्किल हैं। He decided to spend his pocket money judiciously. उसने डिसाइड किया मैं बड़े सोच समझकर अपनी पॉकेट मनी को जो है खर्च करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही लेफ्ट हिज हार्ड अर्न मनी एट होम, हैप्पीली एट द डिलीशियस पराठा, पनीर रोल एक्सेट्रा हिज मोम हैज प्रिपेयर्ड विथ सो मच लव। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो अपनी उसने जो पैसे कमाए थे उनको घर ही छोड़कर जाता है और खुशी खुशी जो उसकी मम्मी ने उसके लंच बॉक्स उसका पैक किया है, उसमें एक टेस्टी सा पराठा डाला है और पनीर रोल डाला है, उन सबको वो बड़े आराम से खुश होकर खाता है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय तान्या यादव। नाउ स्टूडेंट टेल, आप अपनी पॉकेट मनी को वाइसली कैसे यूज कर सकते हैं? यस, थिंक एंड आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी पॉकेट मनी कहाँ यूज़ करते हैं? आप जंक फूड खाने में अपनी पॉकेट मनी का यूज़ करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वो क्योंकि हमारी वो इम्यूनिटी को वीक कर देता है।
तो हमने अब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी मम्मी के हाथ का हेल्दी टेस्टी खाना खाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम हेल्दी रहेंगे और हम कोरोना वायरस को हरा देंगे। करेंगे ना आप ऐसे? अब आपकी जो पॉकेट मनी बच गई है उसको आप यूज कैसे करेंगे? आप उस पॉकेट मनी से किसी गरीब पर्सन की हेल्प कर सकते हो। आप उससे उसका कोई ज़रूरत का सामान उसको खरीद कर दे सकते हो। उससे उसकी हेल्प हो जाएगी, वो भी हैप्पी हो जाएगा और आप भी खुश रहोगे। ठीक है, करेंगे ऐसा? वेरी गुड। अब आप बेटे जो आपको मैंने न्यू वर्ड्स दिए थे, आप उन्हें लर्न करेंगे और उसको आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखेंगे। Dear parents, if you have any query, you can comment in the comment box. Thank you. Take care of yourself. Stay home. Stay safe.